Samvedana Vashya is based in Ahmedabad, Gujarat. Samvedana completed her diploma in painting and diploma in commercial art from Sheikh CN College of Fine Arts, Ahmedabad. I wanted to bring forth my own feelings and perception of Banaras, the way I see, feel and how I relate to it, through art with varied materials, thereby depicting the vibrant facets of the city. Use of threads depicts a strong connection, whereas the shlokas portray the energy that vibrates with every word when chanted. I use bright red and orange capturing the spiritual essence, the blues and blacks to show the vastness and depth of Banaras, muses Samvedana. Banaras has captivated many a being with its spiritual as well as colorful charm. The Ganga Aarti, the festive colors and festivals throughout the year, the ever mystical cults, the trees bearing the symbols of life and death with colorful threads, cradles tied around giving into hope and gratitude, the chants and bells, simplicity of the people, and many more mesmerizes the spirit of any who step into Banaras or Kashi. Samvedana was not spared either and fascinated by the intensely beautiful and spiritually rich land of the moksha or liberation, she started capturing the emotion, energy and experience she goes through each time she visits the city in her artworks. Her deep connection to the place echoes through her onto the substrate. Her color palette is minimalistic, taking us back to the minimalism movement, yet rich enough to entice the viewer in its engaging brightness and liveliness. Samvedana's palette consists earthy colors strong and powerful like Rudravasa, the city she is portraying, and cool and calm as the Ganges that flows carrying many an emotion poured in, the gold depicting the transformation as well as the glow of the passage to the light. She uses mixed media to convey her message to the viewer, which captures the true essence of the experience. The threads, collages, found materials, and the mediums used are thoughtfully placed to give the composition movement, depth and meaning. The journey is never ending and the medium vanishing into the space beyond conveys the thought which introspects infinity and the thread of life that holds and connects all life. Samvedana's works will enthrall and will travel the viewer to the most amazing journey of life. हेलो, मेरा नाम संवेदना वैश्य है। मैं अहमदाबाद से हूँ। मैंने सेठ CN कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट्स से ग्राफिक डिज़ाइनिंग और पेंटिंग का स्टडी किया है और पिछले 20 इयर्स से मैं फ्रीलांस आर्टिस्ट हूँ। मेरा स्टूडियो अहमदाबाद में ही है, नवजीवन प्रेस में। इससे पहले मैंने हटी सिंह विजुअल आर्ट सेंटर में 5 इयर्स एज एन आर्टिस्ट काम किया है। और ये पूरी जर्नी जो है मेरी आर्ट फील्ड की, वो स्टेप बाय स्टेप जैसे बताऊं तो मैंने शुरू किया था रियलिस्टिक वर्क से, और तभी भी ऐसा था कि कुछ कलर्स मेरे वर्क में बहुत आते थे, लाइक ब्राइट कलर्स, रेड, येलो, ब्लू, ऑरेंज। तो वो कहीं ना कहीं वो कुछ कनेक्शन मुझे फील होता था स्पिरिचुअल लाइफ से। उसी दौरान मेरा मुझे वैसे ट्रैवलिंग का बहुत शौक़ है, तो मैंने ट्रैवल किया था उत्तराखंड में। तो वो पूरा वो जो ट्रैवलिंग का टाइम था, मैंने वो एक्सपीरियंस किया कि वहाँ पे स्पिरिचुअल एस्पेक्ट से पूरा मैंने वो जर्नी मेरा देखा कि हिंदुइज़्म का जो भी मंत्र वगैरह है, मैंने वो भी मेरे काम में यूज़ किया है इनिशियली जब मैंने ये काम स्टार्ट किया था तब। और वो थ्रू आउट अभी भी मेरे काम में आ रहा है। और ये पैलेट तो जैसे चेंज नहीं हो रहा है, अभी भी मेरे वर्क में रेड, येलो और जो ब्राइट कलर्स हैं वो बहुत आते हैं। तो और इस दौरान कुछ कैंप में और ऐसे मैं गई थी नेशनल कैंप वगैरह में, तो बीच में एक टाइम ऐसा आया कि वर्क में थोड़ा चेंजेस आए। लाइक मैंने ग्लास पे, जो ग्लास की एक सेंसिटिविटी होती है, उस पे काम किया था। वो कुछ एक्सपीरियंस की वजह से वो चीज़ें आई थी मेरे वर्क में। तो ये स्टेप बाय स्टेप पूरा ये जर्नी है मेरा। लाइक अभी जो मैं काम कर रही हूँ वो पूरा बनारस सीरीज़ है। बनारस क्यों? तो बनारस इस वजह से कि 2011 में मैंने बनारस में एक मेरा सोलो शो हुआ था।
तो पूरे 10 दिन वहाँ रहने के बाद जो भी एक्सपीरियंस था बनारस का, तो और उसके बाद मैंने देखा काफ़ी सारे सीनियर आर्टिस्ट, वेल नोन आर्टिस्ट ने बनारस पे काम किया है। तो पहले से ही मुझे सर एस रज़ा का काम से मैं बहुत इन्फ्लुएंस है मेरे में उनके काम से। तो मैंने काफ़ी सारे सीनियर आर्टिस्ट के भी काम देखे हैं जिन्होंने बनारस पे काम किया है, जैसे मनु पारेख हैं। तो ये सब लोगों का जर्नी जो रहा है वो सेम जैसे मुझे भी फील होता है वो सिटी से। और मेरी सीरीज़ 2011 से अभी तक मैं सिर्फ बनारस पे काम कर रही हूँ। उसमें काफ़ी सारे ऑब्जेक्ट मैं यूज़ कर रही हूँ, जैसे बेल हैं, फिर नाड़ा छड़ी है। ये सब चीज़ें जो हैं वो कहीं ना कहीं मुझे कनेक्ट करती हैं बनारस से। और काफ़ी सारे मैंने वर्क वुड में भी किए हैं, वो सब चीज़ें यूज़ करके मैंने ये काम किए हुए हैं। तो और मेरी जो टेक्निक है उसमें भी मैंने काफ़ी चेंज लाया है। जैसे मैंने बोला स्टार्टिंग में कि मैं ऐसे तो ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ, तो एक फिनिश वर्क मेरे वर्क में हमेशा आता था। तो वो चीज़ मुझे ब्रेक करनी थी। मुझे हमेशा ऐसा होता था कि ये जो फिनिशिंग आ रहा है उसको मैं ब्रेक करूँ। तो अभी मैं जो कर रही हूँ वो पहले नाइफ से काम करती हूँ, थोड़ा बोल्ड बैकग्राउंड मैं यूज़ करती हूँ। फिर उसके बाद उसमें वॉश टेक्निक से पूरा बैकग्राउंड में डेवलप करती हूँ और फिर मैं कैनवास पे काम करती हूँ। तो ये जो चेंज है वो भी एक पूरा ये थॉट प्रोसेस के साथ भी जाता है और उसके बिना तो वैसे काम भी नहीं होता है। तो ये पूरा जर्नी जो है बनारस का बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं हर साल बनारस जाती हूँ और कई बार साल में 2 बार भी जाती हूँ। तो वहाँ पे भी मैं स्केच करती हूँ और वही चीज़ें यहाँ लाके मैं फिर कैनवास पे मैं डेवलप करती हूँ। तो ये पूरा जो भी काम होता है वो ऐसे ही नहीं होता है, उसके पीछे बहुत सारे थॉट हैं, बहुत सारी उसकी प्रोसेस हैं। तो इसी वजह से भी इंटरेस्टिंग हो जाता है ये वर्क। वो बनारस की एक फीलिंग है, मॉर्निंग जो आप विज़िट करते हैं तो लगता है कि एक फॉगी एटमॉस्फेयर है और पूरा बनारस का जो लैंडस्केप है वो फॉग से जैसे दिखता है। तो वही टेक्निक मैं अपने काम में भी यूज़ कर रही हूँ आजकल। तो अभी मैं जो काम मैं ये कैंप के लिए कर रही हूँ उसमें भी सेम टेक्निक और उस पे ही मैं काम कर रही हूँ। लाइक मैं इसमें मंत्र यूज़ कर रही हूँ। फिर जो पूरा टेक्निक है, लाइक मैंने बैकग्राउंड इतना इंटरेस्टिंग किया हुआ है कि वो फीलिंग वो ही आती है मुझे। मैं जब काम भी करती हूँ या उसको देखती भी हूँ करने के बाद, तो वही फीलिंग आती है कि मैं बनारस में ही हूँ और वहीं पे ये काम कर रही हूँ। तो ये जो पूरा प्रोसेस है, मैं जो अभी के जो यंग आर्टिस्ट हैं, अपकमिंग आर्टिस्ट हैं, उनको मैं यही कहना चाहूँगी कि आपका सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको थ्रू आउट ये काम करना है। जो भी आप कर रहे हैं उसमें आपको थ्रू आउट जाना है। तो अभी के जो यंगस्टर हैं उनके लिए मैं यही कहूँगी कि आप रोज़ का एटलीस्ट आपको काफ़ी सारे स्केचेस करने हैं। आपके अगर सिटी में ऐसा कुछ ना हो तो आपको आपके घर में या किसी के पोर्ट्रेट ऐसे करके ये स्टडी कॉन्स्टेंटली जारी रखना है, तो ही आगे जाके आपको ये यूज़फुल रहेगा। और आप जो कर रहे हैं उसमें एक कॉन्फिडेंस आएगा। तो और कॉन्फिडेंस तभी आता है जब आपको वो चीज़ में आपने खुद ने इतना रियाज़ किया हो। तो जो अभी के आर्टिस्ट हैं उनके लिए मेरा यही एक जैसे बोलते हैं कि मेरी एडवाइस यही है कि आप हर रोज़ के एटलीस्ट 50 से 100 स्केचेस करें और आपको कहीं ना कहीं वो आपकी जर्नी में काम आएगा। आपको ज़रूर वो यूज़फुल रहेगा।
और हमेशा ये सोचिए कि आप जो देख रहे हैं उसको माइंड में रखिए और उसको फिर कैनवास में लाने की कोशिश करिए। आपकी टेक्निक कुछ ऐसे डेवलप करिए जो डिफरेंट हो, और आपको वो ही करना चाहिए जो आपकी जर्नी के दौरान आप फील कर रहे हैं। तो उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। और कुछ नए नए एक्सपेरिमेंट करिए, पेपर में काम करिए, कैनवास में काम करिए, कलर्स में भी वेरिएशन लाइए। लाइक वाटर कलर में काम करेंगे तो एक फ्लो मिलेगा जिससे आपके वर्क और इंटरेस्टिंग होंगे। तो वाटर कलर में भी इंटरेस्टिंग वर्क हो सकते हैं। तो यही एडवाइस है अभी के जो आर्टिस्ट हैं उनके लिए कि बस काम करिए आगे। तो ये तो पूरा जैसे बोलते हैं आर्ट की पूरी जर्नी पूरा एक विश्व है। तो वो जर्नी कभी ख़त्म नहीं होती है, आपको वो जारी ही रखना है। जब तक आप काम कर सकते हैं उसको जारी रखिए। ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर। थैंक यू।